Have more updates coming in. JKNC MLA Khurshid Ahmed has given a statement on the landslide in Jammu and Kashmir. He stated an incident of a cloudburst occurred in a small village in Mahor Tehsil. He had never seen such heavy rainfall. He also added that villagers have recovered the bodies of the 7 people who died due to the incident. Let's in fact listen in. बड़े दुख की बात है ये। महौर तहसील में ये बदर का मुकाम है और बोले छोटा सा गांव है कि कराड़ा, वहाँ पे रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो इतनी बारिशें हो रही हैं कि क्या बताएं आपको, और बहुत ही नुकसान हुआ है हमारा। वहाँ पे एक नज़ीर अहमद नामी एक शख्स था, बेचारा बहुत ही गरीब आदमी था, और उसकी बीवी थी उसके साथ वजीरा बेगम, और उनके 5 बच्चे। सबसे बड़ा बच्चा 10-11 साल का था। 5 बच्चे और 2 वो खुद मियाँ बीवी, उनकी डेथ हो गई है। बहुत बड़ी दुखद खबर है। All right, Ajay, take us through the details that are coming in terms of the statement that has been made by JKNC MLA. Yes, he says that it was a tragic incident, and immediately after landslide took place, he spoke to the local authorities. They rushed to the spot, army, police, they rushed to the spot, and the rescue operation was launched. But as I said, the area is far-flung and definitely a challenging situation because of ongoing weather conditions. They were basically in a huge slide. So till the time they were evacuated, they basically lost their life, and 7 people have died. Now authorities they are continuously asking the people those who are living in such areas which are landslide prone areas. They are continuously saying that they should not go near these locations and stay away so that they will not get trapped or hit because of these landslide and the cloudburst. All right, Ajay, thank you so much for joining us on the telecast. Meanwhile, some news coming in from Uttarakhand. The Chief Minister of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, has given a statement stating that he has directed the State Disaster Management Secretary and district magistrates of the concerned districts to carry out rapid relief and rescue operations in the areas affected by the disaster caused by the cloudburst in Rudraprayag, Chamoli and other districts. Along with this, he also added that proper management should be made for the disaster affected people. Joining me on the telecast is Shubham Kotnala. Shubham, take us through the details that are coming in terms of the ongoing rescue operations and also the statement that has been given by the Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami. जी बिल्कुल, बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरह से बादल फटने के बाद से वो चमोली और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में जो है बड़ी जो है तबाही देखने को मिली। वहाँ पर उसके बाद से जो है रेस्क्यू टीमें वहाँ पर कार्य कर रही हैं लगातार, और मुख्यमंत्री लगातार जो है निर्देश हैं कि जिस तरह से रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है उसमें जो है किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए, सभी चीज़ों को देखा जाए। हालांकि रेस्क्यू टीमों को कल से लेकर काफ़ी अभी तक जो है काफ़ी सफलता मिली है। जो लोग निकाले गए हैं वहाँ से उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाया गया है। सड़क मार्ग को खोलने के कार्य किए जा रहे हैं रेस्क्यू टीमों के द्वारा। इसके साथ ही जो है मलबे में जो लोग दबे हुए थे या कुछ क्या वो भी वहाँ से बरामद किए गए, उनको भी वहाँ से निकाला गया है। इसके साथ जो है अब पूरी घटना के दौरान जो नुकसान हुआ है लोगों का, क्योंकि इस दौरान जो है कुछ भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं मवेशियों गौशालाओं, और इसके साथ हम बात करें तो मछली तालाब अन्य तमाम चीज़ों को जो है इसमें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो उसके लिए भी जो है जिला प्रशासन अब इसमें कार्रवाई करता हुआ दिखेगा, और इसमें जो भी चीज़ें हैं आकलन किया जाएगा कि कहाँ तक इसको जो है ठीक किया जाए, और मुआवजे की राशि कितनी तय की जाए, और प्रभावितों को क्योंकि जिनके जो है घर क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको फिलहाल जो है एक सुरक्षित जगह पर जो है रुकाया गया है, और वहाँ से जो है पूरी उनकी जो है व्यवस्था की गई है, रहने खाने अन्य तमाम आवश्यकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही जो है जिलाधिकारी जो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं उनसे भी लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, अपडेट लगातार ली जा रही है। अन्य तमाम जो भी चीज़ें उनको आवश्यकता है उन सभी के लिए जो है पूर्ति करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही हम बात करें क्योंकि मौसम भी लगातार अपडेट दे रहा है, लगातार मौसम के लिए भी अलर्ट जारी हो रहा है, तो उन जगहों के लिए जो है विशेष सावधानी बरतने की अपील लगातार की जा रही है। जिलाधिकारी लगातार जो है शासन प्रशासन से टच में है, और हर चीज़ की जो है अपडेट ली जा रही है।
और सभी जगहों पर जहाँ पर अलर्ट जारी किया जा रहा है वहाँ पर अन्य तमाम जो चीज़ें देखी जा रही है कि वहाँ पर इस तरह से अगर कोई इस तरह की स्थिति फिर दोबारा बनती है कि लैंडस्लाइड होना या बादल फटने की, तो वहाँ पर उनको कैसे किया जाए या टीमों को किस तरह से तैयार किया जाए, इन सभी की जो है पूरी व्यवस्था है। आपदा प्रबंधन की ओर से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। All right, Shubham, thank you so much for joining us on the telecast. Meanwhile, some news coming in from Varanasi.